Hello everyone. Hope you all are well. Before starting the content, मैं एक बार फिर से आप लोगों से ये अपील करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट you can get the new videos. Today I'm going to cover class 11th unit number 2nd, that is Olympic movement. In this part we are going to cover some topics like International Olympic Committee, 3 other Olympic bodies which is also running under the guidance of International Olympic Committee. Those bodies are Special Olympics, Deaf Olympic and Paralympics. And after these committees we are going to cover Indian Olympic Association and the objectives of these committees, then sports awards in India, in that Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, Dronacharya Award, Arjun Award and Maulana Abul Kalam Azad Trophy, which is for a university, and then some award for young budding talents, or we can say for the school going students like Chacha Nehru Award. These are the content which we are going to cover in this video. Now we are going to start this content, that is International Olympic Committee. Before this topic, already we have covered about Olympic movement, ancient Olympic, origin of ancient Olympic, rules and regulations and awards. And second topic was modern Olympics, starting of modern Olympics, flag, oath, motto, objectives, ideals, all these part of modern Olympics. Now International Olympic Committee. When we are talking about International Olympic Committee, it is an international, non-profitable, non-governmental body for dealing with Olympic Games. Basically Olympic Games की जो सारे एक्टिविटीज़ हैं वो सब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी रेगुलेट करती है. दिस कमेटी वॉज founded by Baron Pierre de Coubertin on 23rd June 1894, and Mr. Demetrius Vickles was the first president of this committee. The first Olympics, that was Summer Olympic, was organized under the guidance of International Olympic Committee, was 1896 Athens Olympic. It was a World Summer Games or Summer Olympic Games, and then the first Winter Olympic Games in 1924 France was organized under the guidance of this committee. And after these games, continuously International Olympic Committee is organizing World International Olympics, Summer Games and then Winter Olympic Games. When this committee was started, only 14 countries was the member of this committee. After that in 1999, 115 countries was the member of this committee. Until the date, more than 215 countries are the member of this International Olympic Committee. Then when we are talking about the heads of this committee, तो इसमें एक जो फर्स्ट इसका जो मेन चेयरपर्सन होता है, दैट इज़ कॉल्ड द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी. ये पोस्ट ऐसी है जो कि बेसिकली 8 ईयर्स के लिए एक बार इसका इलेक्शन होता है.
and after 8 years he or she can re-elected by again a election. Second thing, the vice president, basically वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो 4 years के लिए सिलेक्टेड होता है. एंड इसके जो वाइस प्रेसिडेंट्स के जो नंबर्स हैं वो बेसिकली 4 होते हैं, जो डिफरेंट कैटेगरीज में, लाइक एक टेक्निकल कमेटी, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कमेटी एंड देन फाइनेंशियल वाइस प्रेसिडेंट. बेसिकली इस तरह से 4 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं जो कि 4 साल के लिए इलेक्टेड होते हैं. एंड द सेम टर्म्स एंड कंडीशंस आर विद दिस पोस्ट ऑल्सो. दे कैन re-elected after completing their time period. Then some executive board members are there, जिनमें से कि कुछ लोग जो वर्ल्ड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कमिटीज़ हैं या स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, जैसे कि हम बात करते हैं इंटरनेशनल वॉलीबॉल एसोसिएशन, फीफा और इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन. जितने भी ऐसे इंटरनेशनल गेम्स हैं या इंटरनेशनल एथलेटिक एसोसिएशन, जितने भी इंटरनेशनल कमिटीज़ हैं या बोर्ड्स हैं, उनकी जो मेंबर्स हैं कुछ वो बोर्ड एग्जीक्यूटिव कमेटी में होते हैं. और इसके अलावा कुछ डिफरेंट कंट्रीज़ के उनकी जो इंटरनेशनल कमेटी के चेयरमैन हैं या जो और मेंबर्स होते हैं वो हो सकते हैं इस बोर्ड कमेटी में. नाउ बात करते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी. Basically to promote physical, mental and social health in the world. This is the main objectives of International Olympic Committee. Beyond that, keeping these three objectives in their mind, वो फिजिकल हेल्थ के लिए ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर वर्क करते हैं. जितनी भी इंटरनेशनल ओलंपिक, इंटरनेशनल गेम्स फेडरेशन कमिटीज़ हैं प्लस नेशनल ओलंपिक कमिटीज़ हैं, उनको डिफरेंट गेम्स की उसके लिए उनको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, उनको इन केस ऑफ एनी नीड फंड्स प्रोवाइड करना, प्लस उनकी सिलेक्शंस में, उनकी कोचिंग प्रोसीजर में कोचेस को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना या उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ये सारा काम इंटरनेशनल कमेटी का होता है. इसके अलावा जो इंटरनेशनल कमेटी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, वो जितने भी नेशनल ओलंपिक एसोसिएशंस हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प प्लस उनसे ये जो फंड उनको प्रोवाइड करता है उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड मांगने का काम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी करती है. प्लस हर एक कंट्री में जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, साथ में उस स्पोर्ट्स के या उसकी जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रखना, प्लस डिफरेंट टाइम पर जो ओलंपिक की एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो विंटर ओलंपिक्स हो, समर ओलंपिक्स हो या वर्ल्ड समर गेम्स हो, वर्ल्ड विंटर गेम्स हो, या जो और भी इंटरनेशनल लेवल के गेम्स होते हैं, उनमें भी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी समटाइम्स टेक्निकल, ऑफिशियल और फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करती है. जैसे कि हम लोग बात करते हैं कॉमनवेल्थ की या और ऐसे जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं, इन केस ऑफ एनी नीड इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इनको फंड्स और साथ में इनको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है. देन हम लोग बात करते हैं नेशनल लेवल पे इसका क्या काम है. इन एवरी कंट्री देयर इज़ अ नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन या उसका एक नेशनल जो ओलंपिक बॉडी है उसको बेसिकली एक सेट ट्रेनिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, प्लस वहाँ पर एक डिफरेंट ड्यूरेशन में गेम्स को ऑर्गेनाइज करना, प्लस वहाँ से जो प्लेयर्स हैं उनका सिलेक्शन करने का काम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का है. साथ में जहाँ पर भी स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे गेम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का एक जो मेन काम है वो वहाँ पर ये चेक करना है कि कोई भी एथलीट या कोई भी प्लेयर कोई भी अनफेयर मीन यूज़ करके अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस ना कर सके. फॉर दैट वी हैव इंटरनेशनल वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी एट इंटरनेशनल लेवल एंड एट द नेशनल लेवल वी हैव नेशनल डोपिंग एजेंसी, जहाँ पर प्लेयर्स का बार बार ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल लेकर के ये चेक किया जाता है कि प्लेयर ने कोई भी डोपिंग या कुछ और भी अनफेयर मीन यूज़ नहीं किया हुआ है. इसके अलावा प्लेयर्स में और साथ में कंट्रीज के बीच में सम एथिकल जो वैल्यूज़ हैं या प्रमोशन करना, प्लेयर्स को उनकी पर्सनल हेल्थ हाइजीन और साथ में इंजरीज़ के लिए जागरूक करना, टाइम टू टाइम जो इंटरनेशनल ऑफिशियल्स हैं या जो नेशनल ऑफिशियल्स हैं इन केस ऑफ एनी नीड उनको वर्कशॉप प्रोवाइड करना, जितने भी न्यू चेंजेस हैं उनके उसके लिए उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करना है. देन दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव्स
एंड एम ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। देन स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे, बेसिकली देयर आर 3 अदर बॉडीज़ जो एक तरीके से इसके गाइडेंस में इसके पैरेलल वर्क करती हैं। द फर्स्ट बॉडी वाज द स्पेशल ओलंपिक्स। इट वाज फाउंडेड बाय यूरिक शेरबर कैनेडी। शी वाज द सिस्टर ऑफ सर जॉन कैनेडी। ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। उन्होंने बेसिकली स्पेशल ओलंपिक्स का एक एज ए NGO उन्होंने रजिस्टर्ड कराया हुआ था इसको, और बेसिकली वो अपने घर में जो स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं, स्पेशल जब वन मोर थिंग, जब हम स्पेशल ओलंपिक की बात करते हैं तो इसमें केवल मेंटल रिटार्डेड स्टूडेंट्स आते हैं, या मेंटल रिटार्डेड जो इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड एथलीट होते हैं उनके लिए काम करती है। उन्होंने बेसिकली इंटेलेक्चुअली जो चैलेंज्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक इस कमेटी को ऑर्गेनाइज किया था, और आफ्टर दैट धीरे धीरे अभी दिस कमिटी इज़ वर्किंग मोर देन 200 कंट्रीज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो इसकी जो बॉडी इंडिया में वर्क करती है दैट इज़ कॉल्ड स्पेशल ओलंपिक भारत। और अभी इंडिया में मोर देन 5 लाख एथलीट्स इसके अंडर रजिस्टर्ड हैं जो कि ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, एंड वी हैव अ प्रोमिनेंट प्लेस इन स्पेशल ओलंपिक्स, इंटरनेशनल स्पेशल ओलंपिक गेम्स, बिकॉज हमारे पास मोर देन 1000 मेडल्स अभी तक आ चुके हैं। इस टॉपिक को हम लोग बहुत डीपली डिस्कस करेंगे जब आगे हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रेन। देन बात करते हैं पैरालंपिक की। पैरालंपिक इज़ अ बॉडी विच इज़ वर्किंग फॉर फिजिकली डिसेबल और फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। यहाँ पर जो एथलीट की कैटेगरी होती है वो उनके चैलेंजिंग या उनके डिसेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन सा प्लेयर कितना डिसेबल है या कितनी % डिसेबल है। इससे ऊपर डिपेंड करेगा उसका फंक्शन या उसकी जो वीकेंड से उसका जो कैटेगरी है। देन बात करते हैं डेफ ओलंपिक की। दिस इज़ कॉल्ड म्यूट ओलंपिक्स, और डिफरेंट जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं या जो ऐसे एथलीट्स हैं जो बेसिकली जिसको हियरिंग की प्रॉब्लम होती है वो, और जिसको बोलने की प्रॉब्लम होती है वो इस ओलंपिक्स के अंदर काम करते हैं। इसकी भी सेम नेशनल, स्टेट, देन इंटरनेशनल बॉडी है, और ये प्रॉपरली उसी तरह से जिस तरह से वर्ल्ड समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स वर्क करते हैं, सेम उस तरह से ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप्स हैं ये प्रॉपरली वर्क करते हैं उसी सेम कंडीशन पर।